مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی حالیہ میں بنگلور کا مناظرہ ایک ڈفالی نام نہاد قاری اور اس کے گروپ کے لوگوں سے علماء اہل سنت کا ہوا، جس کا خلاصہ یہ رہا کہ علماء اہل سنت کے سامنے وہ ڈفالی ٹیم ٹک بھی نہ پائی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ اپنے مقصد میں کسی بھی انداز سے کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ مناظرہ جو بنگلور کی سرزمین پہ ہوا، اسے کچھ نوجوانوں نے سنا اور سننے کے بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے ہمیں رافضی خیال کے نام نہاد عالم نما لوگوں سے بات کرنے میں کافی آسانی اور سہولت ملتی نظر آ رہی ہے، اور ایک اچھا راستہ ہمیں دیکھنے کو ملا، اور بہت سارے پردے ہمارے نظروں سے اٹھے۔ نیز کئی احباب نے اس تعلق سے خواہش کا اظہار کیا کہ ایسے مناظرے اگر ہم کو سننے کو ملتے رہیں تو ہمیں کافی معلومات ہوتی رہے، اور بدعقیدوں خصوصاً وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں سے کس طرح گفتگو کی جائے، جو الجھے ہوئے مسائل ہیں جن پر ان کا اعتراض ہے اس کا جواب کیسے دیا جائے، تو یہ سب چیزیں ہمیں بآسانی مل جائیں۔ لہٰذا کسی اور بھی مناظرے کی کلپ اپلوڈ کرائی جائے۔ تو اس تعلق سے اٹارسی کا پرانا مناظرہ جو علماء اہل سنت 4 موضوعات پہ ہوا، جس میں جماعت اہل سنت علماء بریلی نے بڑے ہی بہتر انداز سے مخالف گروپ کے اعتراض کا دندان شکن جواب دیا، اور شرائط ہی کے دوران دیوبندی مناظر بوکھلا گیا علماء اہل سنت کے چہروں کو دیکھ کر کہ اب ہمارا حال کیا ہوگا۔ آپ بخوبی اس کلپ میں ملاحظہ کریں اور آنے والی آگے کلپوں کا انتظار کریں۔ مناظرہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ اس مجلس میں بھی شرائط مناظرہ کی تکرار ہو جائے۔ یہ 27 شعبان المعظم کو اسی شہر اٹارسی میں حاجی محمد ذاکر صاحب اور حاجی محمد اقبال صاحب کے مکان پر مولانا نذر محمد قاسمی صاحب اور اس فقیر نے بیٹھ کر یہ شرائط متعین کیے تھے۔ آج بتاریخ 27 شعبان المعظم 1428 بمطابق 10 ستمبر 2007 حاجی محمد اقبال صاحب اور حاجی محمد ذاکر صاحب کی موجودگی میں بمقام حاجی محلہ حاجی منزل میں مولانا نذر محمد قاسمی مظفر نگری اور مولانا فخر الدین احمد قادری مصباحی ناگپوری کے درمیان مناظرے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط طے کیے گئے۔ نمبر 1، مناظرہ تقریری اردو زبان میں ہوگا۔ نمبر 2، سوال و جواب کے لیے ہر فریق کو برابر کا وقت دیا جائے گا، جو کہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، کم کی کوئی قید نہیں۔
نمبر 3، ہر مناظر کو عالمانہ سنجیدگی اور وقار کا پورا لحاظ رکھنا ہوگا۔ نمبر 4، ہر مناظر عربی عبارت خود پڑھے یا اس کا معاون پڑھے۔ صرفی، نحوی، گرامر کی غلطی پر گرفت کرنے کا دوسرے فریق کو پورا حق ہوگا۔ نمبر 5، فریقین میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا کہ جو بات مناظرے میں کہی جا رہی ہے اسے فریق مخالف سے لکھوانا چاہے تو لکھوا لے، مناظر کو اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگا۔ نمبر 6، دلائل میں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اور قیاس مجتہدین ائمہ حنفیہ نیز دوسرے ائمہ کے وہ اقوال جو فقہ حنفی سے متصادم نہیں ہیں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ استدلال میں پیش کی جانے والی اصل کتاب طلب کرنے پر اسی وقت دینا ضروری ہوگا جبکہ فریق مخالف حوالے کی صحت کا اطمینان کرنا چاہتا ہو۔ نمبر 8، ہر فریق اپنے ہی اکابر کی کسی عبارت یا کتاب سے فریق مخالف پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتا۔ دلیل میں انہی ائمہ کی عبارتیں دلیل بنے گی جو دونوں فریق کے متفقہ اکابر ہیں۔ نمبر 9، ہر فریق پر خود اس کے اکابر کی کتابیں حجت ہوں گی۔ انکار کی صورت میں اس عبارت پر وارد ہونے والا حکم شرع ظاہر کرنا ہوگا۔ نمبر 10، کسی فریق کو حق نہ ہوگا کہ مجلس مناظرہ کا اختتام اپنی پسند کے طریقے قیام و میلاد پر کرے، اپنی قیام گاہ پر چاہے تو قیام و میلاد کر سکتا ہے۔ نمبر 11، مناظرے کی روداد یا اس کے متعلق کوئی اشتہار شائع کرنے یا فتح و شکست کا اعلان کرنے کا حق اولاً مناظرہ کروانے والے دونوں فریق کو اپنے اپنے طور پر حاصل ہوگا۔ ثانیاً مناظرین اپنی فتح و شکست کا اعلان خود بھی کر سکتے ہیں۔ طے شدہ موضوع سے ہٹ کر کسی موضوع کو اٹھانے کا حق فریقین کو نہ ہوگا۔ نمبر 13، اس مناظرے کی سی ڈی ویڈیو ریکارڈنگ بنائی جائے گی، اس لیے کہ مناظرہ کرانے والے حاجی ذاکر صاحب اور علماء دیوبند کے نمائندے مولانا نذر محمد صاحب کا اصرار ہے، اس لیے اب علماء بریلی معذور ہیں۔ نمبر 14، ہر دو فریق میں سے مقررہ تاریخ میں جو نہیں آئے گا یا کسی قسم کا عذر کرے گا اس کو شکست تسلیم کرنا ہوگی۔ نمبر 15، مناظرے کے لیے ابھی 4 موضوع متعین کیے گئے ہیں، 2 علماء بریلی کی طرف سے طے کیے گئے ہیں اور 2 علماء دیوبند کی طرف سے طے کیے گئے ہیں۔ علماء بریلی کے 2 موضوع یہ ہیں، نمبر 1 حفظ الایمان کی عبارت، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہوں تو اس میں الی آخری ہی۔ نمبر 2 براہین قاطعہ کا مسئلہ امکان کذب۔ علماء دیوبند کی طرف سے یہ 2 موضوع ہیں، نمبر 1 مولانا احمد رضا صاحب بریلوی اپنے عقائد و عبارات کی روشنی میں کافر ہیں۔ نمبر 2 مولانا احمد رضا صاحب بریلوی گستاخ رسول، گستاخ امہات المومنین، گستاخ صحابہ ہیں۔ نمبر 16 مناظرے میں حاجی محمد اقبال صاحب اور حاجی ذاکر صاحب دونوں فریق کی طرف سے انہی کی برادری کے زیادہ سے زیادہ 10 افراد رہیں گے۔ مناظرے میں دونوں فریق کے علماء کی تعداد 4 سے زیادہ نہیں رہے گی، ان میں سے گفتگو صرف ایک وقت میں ایک عالم ہی کرے گا۔ بغیر عذر معقول کوئی اپنا مناظر نہیں بدلے گا، عذر معقول کا اعلان ضروری ہوگا۔ نمبر 18 دونوں مناظرین کی 15 منٹ کی تقریر کے بعد کوئی خالی وقفہ نہیں رہے گا، ایک مناظر کی تقریر کے فوراً بعد دوسرا مناظر تقریر کرے گا۔ نمبر 19 وقت مناظرہ صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گا، دوسری مجلس دوسرے دن میں انہی وقتوں میں ہوگی۔ نمبر 20 مناظرے کی تاریخ 10، 11، 12 فروری 2008 متعین کی گئی ہے، اگر 3 دن میں تشنگی باقی رہی تو آگے کی تاریخیں مناظرے کے آخری دن طے کر لی جائیں گی۔ نمبر 21 فریقین کا کوئی مناظر اگر شرعاً غلطی کرتا ہے تو غلطی کا اعتراف اعلانیہ کرنا ہوگا، توبہ لازم آئے تو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ نمبر 22 ایک موضوع جب تک پورا نہ ہو دوسرا موضوع شروع نہیں ہوگا۔ نمبر 23 مناظرے کی ابتدا کون سا فریق کرے اس کا فیصلہ قرعہ اندازی سے ہوگا۔ نوٹ: مندرجہ بالا شرائط میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں فریقین کی اس میں دستخط، تاریخ وغیرہ موجود ہے۔ یہ شرائط مناظرہ ہیں۔ اب اس شرائط مناظرہ کے اعتبار سے اولاً کام تو یہ ہے کہ قرعہ اندازی کی جائے، لیکن قرعہ اندازی سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مذہبی دینی جلسہ تلاوت کلام مجید سے شروع ہو۔ حضرت علامہ قاری جوکھن پوری صاحب قبلہ سے میں صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا
کہ तिलावत कलाम मजीद से इस मुनाजरे का आगाज़ फरमाएं। उसके पहले मैं सारे हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने मोबाइल्स मुकम्मल बंद कर लें। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब, पहले ये बताइए कि मुनाजिर तय हैं, ये अलग से कोई मुनाजिर है, मैं और आप ही मुनाजरा करेंगे या आप कोई और मुनाजरा करेगा? शराइत मुनाजरा के अंदर किसी का कोई नाम मुतय्यन नहीं है जी, और आपने ये कहा है और इसमें लिखा भी है कि मैं मुनाजिर रहूँगा, और हमने अपने मुनाजिर का कोई नाम ना पहले तय किया है ना अभी किया है। हम अभी अपने मुनाजिर का ऐलान करने वाले हैं। नहीं, ये तो उस वक्त जब मेरे और आपके दरमियान बात तय हुई थी तो आपने भी ये कहा था, जब मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझसे किसी का नुमाइंदा बनकर बात कर रहे हैं या बहैसियत मुनाजिर बात कर रहे हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बहैसियत मुनाजिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये कहाँ सबूत है आपके पास? और ये कहाँ सबूत है? ये इसमें लिखा है क्या? कि मैं मुनाजरा करूँगा। और ये तो आपने भी लिखा है कि अगर हमारे उलमा में से कोई ना आया तो मैं ना आए तो नहीं। ये तो हमारे और आपके दरमियान तो तय हुई थी। हाजी जाकिर साहब और हाजी इकबाल साहब दोनों मौजूद हैं कि जब मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप बहैसियत मुनाजिर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी का नुमाइंदा बनकर आए हैं, तो आपने कहा था कि मैं बहैसियत मुनाजिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये इसका क्या सबूत है? जी? अगर ये होता तो इसमें मैं ये नहीं लिखता कि अगर हमारी तरफ से कोई मुनाजिर ना आए तो मैं खुद गुफ्तगू करूंगा। देखिए यहीं पर एक तहरीर लिखी हुई तहरीर से साफ इनकार कर रहे हैं आप। देखिए आपके पास भी तहरीर मौजूद होगी, मेरी तहरीर मौजूद है। मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरा के लिए ना आ सके तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि वीडियो को हम नाजायज समझते हैं, लेकिन आपने इस पर इसरार किया, हाजी जाकिर साहब ने इसरार किया कि वीडियो जरूर रहेगा वरना मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कुफ्र ईमान के सिलसिले में इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे। आपने कहा आप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके उलमा का क्या, वो तैयार होंगे कि नहीं? मैंने कहा वो तैयार ना हुए तो मैं हूं मौजूद। नहीं, इसमें तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि मुनाजरे के लिए वीडियो सीडी का बनाना वक्त और हालात के एतबार से जरूरी है, बगैर वीडियो सीडी के मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, खुद नहीं करूंगा, साफ लिखा इसके अंदर जी। तो आप नहीं करेंगे तो आप और मेरे दरमियान बात हो रही थी ना, मेरे और आपके दरमियान बात हो रही थी ना, शराइत तय हुए आपके और मेरे और आपके दरमियान शराइत तय हुए, मेरे और आपके दरमियान मुनाजरे की बातें तय हुई हैं। कहाँ है तहरीर है? बताइए आप शराइत पर चलिए। मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा से मत हटिए जी, राह फरार मत इख्तियार कीजिए, ये है ना, उलझाइए मत। दरमियान आज बतारीख 17 शाबानुल मुअज्जम 1428 मुताबिक मुतकल्लिम का सहगा है, मैं मुनाजरा नहीं हाजी करूंगा। मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी मोहम्मद जाकिर साहब की मौजूदगी में मुकाम हाजी महल्ला हाजी मंजिल में मौलाना नज़र मोहम्मद कासिम मुजफ्फर नगरी और मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद अल कादिर मिसबाही नागपुरी के दरमियान मुनाजरे के लिए मुंदरज झेल शराइत तय किए गए। जी, तो शराइत तो वही तय करेगा जो मुनाजरा करेगा। ऐसा कहाँ लिखा है? जी नहीं, ये जरूरी क्यों नहीं है? मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा तय हुए हैं तो मैं और आप करेंगे, जो आप दूसरे को बोलने का वो नहीं है। मैं और आप ही पहलवान हैं दोनों, जब मैं और आप अखाड़े में आए दूसरों को क्यों वो कर रहे हैं? अगर आपकी तरफ से दूसरा मुनाजिर होगा तो हमारी तरफ से भी दूसरा होगा। हमने भी आप पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। आप अगर खुद हमारे मैं करूंगा कहकर मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं और हमारे उलमा के मुकाबले में अपनी कुव्वत और ताकत को आप कम समझ रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं अपने है। से बढ़कर कोई ऐसा नहीं है, हमारी इजाजत है। ऐसा नहीं है, हम अपने से कम समझ रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप अपने से आप कम समझ रहे हैं। मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा तय हुई है तो मैं और आप ही करेंगे। जी हाँ बोलिए माइक। नहीं, एक और शराइत की खिलाफ वर्जी है। मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा तय हुए कि चार आलिम रहेंगे। साबित कीजिए, शराइत मुनाजरा से साबित कीजिए। मेरे और चार आलिम रहेंगे, चार आलिम रहेंगे। आपके स्टेज पर 4 बैठे हुए हैं आपके अलावा। हाँ, आपके यहाँ पर भी हैं। हमने बाद में बुलवाया है, जब इन्होंने हाँ, हमें आकर बताया। एक वो खड़े हुए हैं। हाजी जाकिर साहब बताइए, बात हुई थी कि नहीं? पहले अभी बात हुई ना, तो वो 5वें वो हो गए हैं। अभी बात हुई थी, वो 5वें हो गए, आप 6ठे हो गए हैं। जी नहीं साहब जी, उनकी वो किताब देने वाला एक तालिब इल्म है, 10 के अंदर है। वो भी किताब देने वाले एक तालिब इल्म है।
हाँ तो आप चाहें तो उनको बाहर कर दीजिए। 5 ही हुए अभी, अब आपको मिला के 5 हुए हैं। ठीक है, उधर 5 है, इधर 5 ठीक है। रहेंगे, उनको बाहर कर दीजिए। ठीक है, बाहर कर दे। किताब निकालना है, आप एक और बढ़ा लीजिए। नहीं, ये तो बढ़ते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी। बस ये एक कैसे किताब चलेगा? एक किताब दिखाने के लिए एक बढ़ा लीजिए। अगर शराइत मुनाजरा को देखा जाए तो हमारी तरफ से चाहे जो मुनाजिर है, इसमें शराइत में कोई बात तय नहीं। नहीं, और ऐसा आपकी नहीं तरफ है। से ये तय हो चुका है कि मैं ही मुनाजिर रहूंगा। नहीं, ये कोई तय नहीं हुआ। मेरे और आपके दरमियान जो बातें हुई हैं, वो सीडी फिल्म की बात थी। हाँ, सीडी तो बन फिल्म रही के है ताल्लुक से आई है ना वो बात। तो वो बन रही है, इसलिए उन्हें करना चाहिए। तो तय हो गया इनका मुनाजर होना। ये चीज इसमें कहीं नहीं लिखी है कि मौलाना नजर मोहम्मद ने ये कहा है कि मुनाजरा मैं करूं। हाँ, नहीं करूंगा, सीडी नहीं बनेगी तो मैं नहीं सीडी करूंगा। फिल्म की बात थी, वो सीडी बन रही फिल्म। है। आप बात को उलझा रहे हैं, तूल देना चाहते हैं। आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं। जी नहीं साहब, राय फरार तो पहले आपने इख्तियार की है। इसमें सराहत हो गई कि अगर सीडी नहीं बनेगी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आप पहले उन 5वें को हटाइए। मुनाजरा करना इनको लाजिम है। आप पहले 5वें को हटाइए। मैं सामीन में जैसे 9 हैं तो सामीन में मुझे शुमार कर लीजिए, हो गया ना? नहीं, आप तो सामीन में नहीं रहेंगे, आप तो उनमें रहेंगे। देखिए जाकिर साहब, ये जो है ना, ये तो फैसला इन मुनाजरा कमेटी वालों के ऊपर है। ये लोग अभी शामीन में मेरा पहले नाम लिख चुके हैं, आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर चुके हैं और इन लोगों की बातचीत आपस में हो चुकी है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे सामीन में नहीं रखना है, तो वो बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये तो आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि जब मैं शराइत मुनाजरा तय कर रहा हूं, मैं बहैसियत मुनाजिर हूं, तो मैं सामीन में कैसे रहूंगा? जी नहीं साहब, मुनाजिर बहैसियत मुनाजिर का लफ्ज इसके अंदर कहीं नहीं है कि मैं बहैसियत मुनाजिर फिर रहूंगा। आप फिर शराइत किस हमारे तय कर रहे थे आप? उलाइका सादाती फजिना बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मुजामिउ। हमारे उलमा किराम की मुकद्दस शान और अजमत को देखकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप हमारे उलमा की शान को देखकर राह फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, आप मुनाजरे को तूल देना चाहते हैं। जनाब, आप ये साबित कीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि मैं मुनाजरा करूंगा। मैंने वीडियो सीडी के तहत लिखा है कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, चूंकि शराइत मुनाजरा मेरे और आपके दरमियान तय अब हुई आप है। नहीं करना चाह रहे, अपना मुनाजिर बदल रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूं कि आप मैदान में आइए, मैं और आप दोनों मुनाजरा करेंगे। ये दीगर उलमा जो है आपके मुआविन और मददगार रहेंगे। हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे अगर वीडियो सीडी नहीं बनेगी तो। जी, आप ये फरमाते कोई जाती मामला है, हमारे उलमा मुनाजरा नहीं का मामला है। अगर मिल्लत का मामला है तो नहीं, आप हजरात को तो बोलने का वो नहीं है। इन बात इनके और मेरे दरमियान हो रही है। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। देखिए, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है। जी, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। ये कोई आप का आप क्या कह रहे हैं? अभी तो तिलावत नहीं हुआ है। मुनाजरा शुरू करने के लिए तिलावत का मैंने कहा, तिलावत अभी हुई नहीं। तिलावत तो अभी मुनाजरा शुरू होगा तो हाँ हाँ, अभी अभी शुरू शुरू नहीं होगा हुआ है। तब होगी। इससे तो शुरू करेंगे। आप हाँ। हाजी जाकिर साहब हैं। हाजी हाजी जाकिर साहब हैं। जी हाँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वीडियो कैसेट नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। तो जब ये वीडियो सीडी बन रही है तो इनका नाम मुनाजिर की हैसियत से मुअय्यन मुतय्यन हो गया। अब इसमें कोई ये तब्दीली करने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। नहीं, अगर आप करना चाहें। एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये लिखा है उसमें कि अगर उलमाए बरेली मुअय्यना तारीखों पर मुनाजरे के लिए नहीं आए आप नीचे तो मैं मुनाजरा करूंगा, और आए तो नहीं और करो। आ गए तो अब हम मुंतखब कर लेंगे किसी को भी। सीडी के ताल्लुक से बात थी जी। बात ये थी कि सीडी फिल्म बनाना जरूरी है। हम जरूरी समझते हैं। मान- इस ताल्लुक से ये बात हाँ, ठीक है। सीडी के ताल्लुक से ये बात कि सीडी अगर नहीं बनी तो सीडी तो आगे क्या अल्फाज है? नहीं बनी तो मैं आगे मुनाजरा नहीं अल्फाज करूंगा। आगे अल्फाज क्या है? मुनाजरा ही नहीं होगा। नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। इसमें ये नहीं है। पूरा देखिए, मुनाजरा शराइत नहीं है, मुनाजरा मैं लिखी पड़ी चीज है। हमने जो शराइत बैठ के तय की है साहब, ये इसमें हमारे जहन में ये बात नहीं थी। अब आपने के जहन में क्या थी क्या नहीं थी हम उसको नहीं जानते। हम जो शराइत लिखा हुआ है मुनाजरा वो- को जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक बात और शराइत के अंदर लिखी हुई है क्या? कि एक वक्त में एक ही मुनाजिर होगा। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही। एक वक्त में एक जब ही मुनाजिर मुनाजरा होगा। शुरू होगा एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा। एक ही बोलेगा। अब इसमें यह कहीं भी शराइत में तय नहीं है कि मुनाजिर जो होगा वो एक ही होगा और हर दिन वही करेगा।
हर दिन की भी अलग शराइत इसके अंदर थी। नहीं, नहीं। लेकिन एक होगा वही बोलेगा, ये तो है। आज एक हो सकता है, कल दूसरा भी मुनाजिर ठीक हो है। सकता हाँ हाँ कल तीसरा भी हो सकता वो है। कल की बात हो जाएगी, वो बात वही है, है। ठीक है। लेकिन अभी तो ये मुअय्यन है आप कि चाहते हैं कि नजर मोहम्मद साहब करें, हाँ, ठीक है, ये कर लें। नहीं, अभी तो आज जब ये तय है तो मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब ही के दरमियान होगा। कल जो है वो अगर बदलना चाहेंगे तो वही बदल लेंगे, हम भी बदल लेंगे। साबित कीजिए कि मौलाना फखरुद्दीन ने ये लिखा है कि मुनाजरा मैं ही ये करूंगा। मुझसे मेरा इनसे सवाल ये है, मुझसे हुआ नहीं। नहीं जो आप तहरीर जो है आप हजरात से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं अभी मुनाज़रा आप हजरात से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब से बात कर रहा हूँ कि मौलाना फखरुद्दीन साहब मुझसे किस हैसियत से बात कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो लिख दिया है वो लिखा हुआ शराइत है। मुनाजरा मैंने इनसे तय- बार बार ये शराइत सवाल मुनाजरा लिखा हुआ किया, है। मैं इनसे बार बार यही सवाल करता शराइत रहा। मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से बात कर रहा नहीं, था मैं। बिल्कुल अभी नहीं। आप एक गलत बात बोल रहे हैं, पहले उसको अपनी बात को साबित कीजिए। मुनाजरा करना क्या है? आपके जितने स्टेज पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा का ये गुलाम हर एक से मुनाजरा करने के लिए तैयार रहेगा। चैलेंज आप बाजी नहीं। बिल्कुल चैलेंज फिर राह फिरार की उख्तार की चैलेंज इख्तियार कर करता रहे हूं हैं मैं। आप। चैलेंज करता हूं मैं ये। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए, मुझे पहले साबित कीजिए आप कि नहीं, अभी आपने चैलेंज दिया है ना, मुझे आपका पहले चैलेंज साबित- मंजूर है। आइए। ये चैलेंज शर्त पर किया था मैंने। नहीं, वो आप जो चैलेंज दे रहे हैं मुझे आपका चैलेंज ये मंजूर है। चैलेंज मैंने शर्त पर किया था। नहीं, आप जो चैलेंज दे रहे हैं मैंने मुझे शर्त चैलेंज लगाई थी मंजूर है। कि पहले साबित कीजिए आप कि मैं ही मुनाजरा करूंगा। ये शराइत मुनाजरा में आपने है। उस वक्त जब शराइत मैंने आपसे मुनाजरा बात से की, भाग आपने रहे हैं। ये कहा था, शराइत आप भाग मुनाजरा रहे की हैं, खिलाफवर्जी कर रहे नहीं, हैं। आप भाग रहे हैं। आप साहब ये आपका पहला फरार है। आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ये मौलाना फखरुद्दीन साहब का फरार है कि वो अपने आप को सामीन में पहले शुमार आप कर रहे साबित हैं। कीजिए, मैं तैयार हूँ। ये शर्त के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं मौलाना। नहीं, शर्त के खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए आप, बताइए। साबित कीजिए। दिखाइए आप शर्त। अभी चैलेंज नहीं किया इन्होंने, सबके सामने चैलेंज नहीं किया इन्होंने। मैंने चैलेंज किया। आप बताइए। आपको इतना नहीं समझता कि शर्त क्या होता है, मशरूत क्या होता है? मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है। आप मुनाजरे के लिए आए हैं तो पहले शराइत आपने तय किए हैं। किस धुन में से तय किए हैं? बगैर मैं मुनाजरा करने के लिए मैंने आपसे बार बार यही सवाल करता रहा। चैलेंज किया है। मैं आपसे पहले बार आप बार साबित करो। आप तो राय मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है कि आप साबित करो पहले। हाँ, जो लिखा वही होगा। जो लिखा मैं है तो तैयार हूं। इस बहस को तुल देने की कोई जरूरत नहीं। खोल दो। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब क्यों भाग रहे हैं? पहले आप साबित कर दीजिए। आप साबित करने से क्यों भाग रहे हैं? आप मुनाजरा साबित करने से क्यों भाग रहे हैं आप? शर्त की रोशनी में आप मुनाजिर नहीं है। आप साबित कीजिए। मैं मुनाजिर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने आपके उलमा है सबसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। सबसे आप करिएगा, लेकिन पहले तो आप शराइत से साबित तो कीजिए। तैयार हो जाइए। जो शराइत है आपके सामने लिखे हुए, आप किस इसीलिए हैसियत मैंने से बात पहले कर रहे प्रश्न थे? उठाया। आप किस हैसियत से बात कर रहे शराइत थे? मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से। ये बर्दाश्त नहीं ये कर पा रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं। मौलाना, बार-बार आप फोन मत कर रहे बोलिए। थे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप मत बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे और इनके दरमियान बात हो क्यों रही नहीं है। बोलेंगे? आप मत बोलिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका जाती मामला नहीं है, ये मजहब का ये मामला मजहब है। का मामला है। ये आपका जाती नहीं है ना, मजहब मिल्लत सबके लिए है। आप तैयार हो जाइए काय के लिए? पहले मुनाजरे आप के लिए। साबित कीजिए। कोई भी लिया होगा। पहले साबित कीजिए आप। आपने एक दावा किया है यहाँ पर, और हर मुनाजिर पर जरूरी है कि अपना दावा साबित करे। आपने ये अभी दावा किया है, उसको रिपीट करके देखो। मैं करूंगा, बातिल से दबने वाले हैं आसमान नहीं हम। ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते पहले हैं। साबित आप कीजिए। भागे क्यों हैं? आप राह फिरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं? नाम आएगा साहब। देखो, बिना वजह की जिद कर रहे हैं और दावे के साथ जिद कर रहे हैं। अगर बगैर दावे के बोलते तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार था, आपके सामने तैयार हूं। अरे मैदान में आए हुए हैं, मुनाजरे के लिए मैदान में आना नहीं है, आए हुए हैं। हम तैयार हैं। हम मैदान में आए, आपसे पहले आए, आधा घंटा पहले मैदान। देखो, शोर मचाने से, जोर से बोलने से कोई हासिल नहीं है। ठीक है मौलाना फखरुद्दीन साहब, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ये बात अब तय हो गई कि आपने दावा अपना साबित नहीं किया। हमने अपना दावा साबित कर दिया है। कहाँ साबित किया? साबित आपने? है। आपने अभी दावा किया, रिपीट करके देख लो कि मुझे ही मुनाजिर की हैसियत से इसमें है, शराइत में है। अच्छा ठीक है, तस्लीम कर लिया। अच्छा ठीक है, सिलसिले में तो तिलावत से पहले जाकिर चलिए भाई, पहले मुनाजिर आप तय कर लीजिए। आज तय हो जाए कि आज कोई मुनाजिर आज ये करना है मुनाजरा, कल दूसरे भी कर सकते हैं। कर सकते वो अलग बात है, कर सकते हैं, वो अलग। हमारी तरफ से कोई ये नहीं। हमारी तरफ से कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, पाबंदी ले, ये तो आ रहा है ना इसमें, तहरीर की जरूरत नहीं, अभी तो आ रहा है सब इसमें। माइक के अंदर बोल दो एक बार, तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर आएगी।
हाँ 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 अभी मुनाजरा मुनक़िद करने वाले इंतज़ामिया में से जो लोग हैं उन लोगों की आपस में ये बात तय हो गई है कि कोई फरीक चाहे तो दूसरे मौके पर एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस या तीसरी मजलिस में अपना मुनाजिर बदल सकता है। यानी जोहर के बाद भी 2 बजे दिन के नहीं, नहीं, दिन के एतबार से भी मजलिस के एतबार से भी कोई लिखने की वो जोहर के बाद दूसरी मजलिस होगी ना। इसमें लिखा हुआ है तो वो कोई दूसरे माकूल पेश करेगा मुनाजिर के एतबार से, उसकी वजह से दूसरा मुनाजिर तय कर लिया जाएगा। मजलिस भी हो मजलिस के एतबार से कर लो। अगर मुनाजिर आएगा तो आपने वो पेश करेगा। हाँ उज़्र माकूल पेश करेगा तो अब ये बात तय हो गई कि उज़्र माकूल ना भी पेश करे। जिन लोगों ने शराइत तय किए थे वो दोनों उन शराइत को बदलने के लिए अपनी रजा से तैयार हैं। मौलाना नजर साहब जी ये फरमा रहे हैं जी कि मुनाजिर चाहे तो बदल सकते हैं जी, और इसमें लिखा है कि उज़्र माकूल बताना पड़ेगा जी। तो अब बगैर उज़्र माकूल बताए भी मुनाजिर बदल सकता है। आपको भी इस पर इख्तियार होगा, हमें भी इख्तियार होगा। ठीक है, आप ठीक अपने है। मुनाजिर बदल सकते हैं, हम अपना मुनाजिर बदल ठीक सकते है हैं। जरूर होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे नहीं शराइत तय की हम लोगों ने और अब दोनों इस बात पर तैयार हैं। अगर दोनों में से एक तैयार ना होता तो ये शराइत ही पर होता। जी अभी दोनों तैयार हैं अपनी रजा के साथ में, तो हम बात को आगे बढ़ाने के लिए उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है मगर इसमें तो आप लोगों ने लिखा है, खिलाफवर्जी मत कीजिए आप। ये इसमें लिखा हुआ है खिलाफवर्जी कि मुंदरजा बाला में कमी या ज़्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। ये लिख दिए आप लोग। फरीकैन को भी नहीं होगा। दो उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है हजरत फरमा रहे हैं। इसलिए नहीं हो सकता, ये तब्दीली नहीं होगी इसकी। मतलब आज जो कर रहे हैं जी वो कल भी वही करेंगे। बिल्कुल। और अगर बदलेंगे तो बदलेंगे तो उज़्र उज़्र माकूल पर पेश करेंगे। बदलेंगे। ये इसमें लिखा हाँ भाई उज़्र ये है कि उनको कोई जाना है, ट्रेन है उनकी। मतलब ये आ रहा है कि नजर मोहम्मद साहब के अलावा कोई मुनाजिर नहीं करेगा। नहीं 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 ये सब किस बात से बोल रहे हैं आप? अकेला मुनाजिरा करूंगा। ये भी तो समझने अभी हम तो अभी ये तय कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए। इतना मान लीजिए। भाई आप अगर ये देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की हुई कि अपन दिन के एतबार से मुनाजिर चेंज कर सकते हैं। हाँ अभी ये अपने दरमियान हुआ है, बैठने वालों के दरमियान हुआ, लेकिन उलमा किराम हमारी रहनुमाई फरमाने वाले हैं। हमारे उलमा कहते हैं कि जो शराइत लिखे हुए हैं इसके अंदर उसी पर रखो, शराइत को बिला वजह तब्दील मत करो। अब मैं ये कह रहा हूँ वो अभी जो मुनाजिर तय होंगे जी उन्हें बोला अभी जो मुनाजिर तय होंगे हाँ आपके उलमा जो ये चाह रहे हैं कि तीनों दिन वही मुनाजरा करेंगे। जी ऐसा चाह रहे हैं। देखिए हमारा मुनाजिर जो भी अभी तय हुआ, अगर वो हम अगर तब्दील करना चाहेंगे अपने मुनाजिर को तो उज़्र बताएंगे। उज़्र माकूल बताना पड़ेगा। और आप भी अगर वो अगर चेंज तब्दील होंगे, करेंगे नजर मोहम्मद साहब तब्दील होंगे तो उज़्र माकूल बताएंगे। ये इसमें लिखा हुआ है जी। वही बात है। तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं सुनिए, नहीं, और बड़ी संजीदगी हमारे और के आपके साथ दरमियान आप- जो शराइत मुनाजरा और तय उसमें हुए, ये है कि फरीकैन को इस तहरीर के लिखने के अभी बाद मुनाजरा तय नहीं शुरू नहीं हुआ ना, तो मुनाजरे से पहले दोनों फरीक नहीं ये तय उसमें कर रहे यह है हैं कि दोनों फरीक को तब्दील करने का हक नहीं है। ये आप ही लोगों ने तय किया है ना, बड़ी संजीदगी। अब अगर हम तब्दील कर रहे हैं तो इस शराइत मुनाजरा की खिलाफ वर्जी होगी या आइन होगा? तो आपका कहना सही है, लेकिन नहीं आप बताइए, खिलाफ वर्जी है कि नहीं? शराइत के तो खिलाफ हो रहा है। खिलाफ हो रहा है ना, ये तो इकरार है कि शराइत के ये खिलाफ किया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक वक्त नहीं, ये शर्त नहीं। जो है आप इनको गलत समझा रहे हैं। नहीं तो एक आप मिनट सही- भाई जाकिर, ये तो आपको आप गलत सही समझा समझा रहे हैं। दीजिए, आप सही समझा आप दीजिए फिर। जब ये शर्त जो है मनसूख करके दूसरी शर्त मनसूख करने का हक ही नहीं है, लिख दिया आपने किसको? फरीकैन को। वही फरीकैन ही तो कर रहे हैं। नहीं, उनको हक नहीं है तो हक क्यों ही नहीं है? नहीं है, हक तो हक को जालिम। नहीं फरीकैन है जी। और आप दिखाइए कहाँ लिखा है? क्या नहीं कर सकते, कहाँ लिखा ये है? लिखा? अगर लिखा है फरीकैन में से कोई एक नहीं कर सकता, दोनों तो कर सकते हैं। फरीकैन में से फरीकैन ये दो हैं। मुंदरजा बाला में कमी या ज्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। किसी एक को ही तो है। एक नहीं है इसके लफ्ज जी। किसी को नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? दोनों फरीकों में से किसी को नहीं, ये तो आप गलत बदलना बयान से चाहे काम तो ले वो भी रहे नहीं बदल हैं। सकते, ये बदलना तो फिर मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब करेंगे, चूंकि शराइत तो मैंने इन्होंने तय किए हैं। जो तय किया है हम
हम भी उसके पाबंद हैं जो आपने तय किए हैं, आप जी। भी पाबंद रहिए। जी, जो मैंने शराइत तय किए हैं मैं भी पाबंद हूँ, और जो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने शराइत तय किए हैं मौलाना फखरुद्दीन साहब को भी उसका पाबंद किया जाए। हाँ, पाबंद है जी, मौलाना फखरुद्दीन साहब और मेरे ही दरमियान जो है शराइत तय हुए हैं, ये और मैं ही मुनाजरा करेंगे। मौलाना फखरुद्दीन साहब जी। ये कहाँ लिखा है शराइतनामे में? जी, चूंकि हमारे माँ बहन ही तो आप शराइत इसका तय जवाब हुए दीजिए, हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है? क्या जी, ये तो शुरू में ही लिखा है, सबसे पहले यही इसमें लिखा लिखा है। हुआ मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरा के लिए शुरू न में आ पढ़िए, सके बिल्कुल शुरू में पढ़िए। तो मैं खुद मुनाजरे के लिए तैयार हूंगा आज बतारीख इंशाअल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म, यहाँ से पढ़िए। वो तो तय करने वाले हैं, मगर क्या तय किया है इसमें लिखा हुआ? मौलवी नजर मोहम्मद साहब, एक बात का मुझे जवाब दीजिए, ये जो आखिर में आपने लिखा है क्या जी, आपस में हम दोनों में तय हुई है। हाजी जाकिर साहब एक मिनट, देखिए अब बहस को तूल देने की जरूरत नहीं है। जी, शरायत मुनाजरे में ये हक है कि मुनाजिर तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उसमें यह है कि उज़्र माकूल पर। लिहाजा अगर कोई फरीक अपना मुनाजिर तब्दील करना चाहता है तो वो तब्दील कर ले, उज़्र माकूल पेश कर दे। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि उसको ये तूल तो दिया दोनों ये तो फरीकैन की रजामंदी से हो रहा है कि कोई भी अपना मुनाजिर जो है तब्दील कर सकता है। उसमें यह भी है कि उज़्र माकूल पर तब्दील कर सकता है, तो उज़्र माकूल ही तो होगा। तब्दील करने की नौबत मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ये शर्त बढ़ रही है, तो आप इस पर क्यों अड़ गए हैं? नहीं तो शराइत मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब के दरमियान तय हुई है। देखिए, शराइत इसलिए लिखे जा रहे हैं कि अव्वल में भी वो काम दे, आखिर में भी काम दे, वस्त में भी काम दे। ऐसा नहीं है कि मुनाजरे के लिए बैठे तो फिर नए शराइत उसमें ऐड किए जाएं और किए जाएं। जो आपने लिखा है वो लिखे ही पर अमल करना होगा। आपने तो बहुत सी गुफ्तगू उस वक्त शराइत तय करने में हुई, क्या सब पर अमल किया जाएगा? अगर इसलिए है तो मुनाजरा एक दिन एक महीना भी ख़त्म नहीं होगा। आप शरायत मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब के दरमियान तय हुए हैं। हाँ, तो शरायत तय करना मेरे उनके दरमियान तय हुए हैं। कितने लोग वो हैं कि शरायत तय करते हैं और शरायत तय करने में मुनाजिर को भी तय करते हैं। यहाँ आपने अपनी शख्सियत को यहाँ मुतय्यन कर दिया है, और मौलाना फखरुद्दीन साहब ने कहा अगर हमारे उलमा नहीं आएंगे, खुल्लम खुल्ला है, उर्दू की इबारत है, ना अरबी है, ना मौलाना हिंदी है, ना फखरुद्दीन चाइना साहब है। ने उस वक्त ये बात कही थी। हाजी इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, हाजी जाकिर साहब मौजूद हैं, ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं कि हमारे उलमा वीडियो सीडी पर तैयार नहीं। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम हजरात, पहली चीज़ तो ये इल्म में भी है सबके, और दोबारा याद दहानी करा रहा हूँ, मुनाजरा कौन करेगा इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये मुनाजरा जब शुरू होने से पहले फ़ाइनल हो जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। पहली गुजारिश ये है कि एक आदमी से दो दो चार चार आदमी गुफ्तगू करें, ये कौन सा तरीक़ा है? कभी वो साहब बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। या तो आप मुतकल्लिम मुनाजरे से पहले मुतय्यन कर लीजिए, या कम से कम सलीक़े से गुफ्तगू कीजिए। एक आदमी से एक ही गुफ्तगू करे, बाकी हजरात उसकी मदद करें, न ये कि खुद माइक पर बोलना शुरू कर दें। अगर इस तरह से चारों आदमी बैक वक्त दोनों तरफ से बोलेंगे तो बात उलझेगी या कोई नतीजा निकलेगा इसका? हम बात को बेउसूली है, यह आपकी तरफ से कतअन बेउसूली है। आप या तो अपना पहले मुतकल्लिम, जब तक मुनाजिरा तय नहीं होता है, शराइत पर बात फाइनल नहीं होती, उससे पहले एक मुतय्यन कीजिए मुतकल्लिम, और अपनी इस गलती का एतराफ़ कीजिए कि हम चारों ने बोल बोल कर ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ किया है। पहले इस बात को अपने वापस लीजिए। गलती करके सराहतन गलती कर रहे हैं और इस पर अड़े हुए भी हैं। ये गलती तो आप मुतालबा करके खुद भी कर रहे हैं जी। मैंने तो आप खुद भी कर रहे हैं ये गलती। बर्दाश्त करने के बाद ये गुनाह है। आप तो शुरू ही से बोल रहे थे, मौलाना तो बिल्कुल आखिर में बोले हैं, आप तो पांचों उस वक्त से बोल रहे थे। ये आखिर वाली गलती है आपकी जी। आपकी गलती पर मुतनब्बह किया है। आप और मैं बात करूंगा जी, मैं और आप बात करेंगे जी, किस हैसियत से बात करेंगे जी? आपकी हैसियत क्या? मुतकल्लिम, बहैसियत मुतकल्लिम
तो आप इसी को तो मुतालबा किया जा रहा है कि पहले एक मुतकल्लिम आपने कर लिया मुतालबा, हम अब आपका मुतालबा पूरा कर रहे हैं। नाम क्या है? आप अपने नाम का ऐलान। जो गलती कर रहे हैं इसकी पहले आप मौलाना ताहिर साहब आप तौबा कीजिए। जी नहीं, उनको करना चाहिए। वो जो 5 आदमी, आप पांचों बोल रहे थे। मौलाना फखरुद्दीन साहब वो बोल रहे थे ना जी, कि सब क्यों नहीं नहीं दोनों बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ई गुनाहेस्त के दर शहर शुमा नीस कुनंद, जिस गलती पर आप हमें मुतनब्बे करना चाहते हैं वही गलती आपने कर ली। अब मौलाना मौलवी नज़र मोहम्मद साहब, मैं आपकी गुफ्तगू करूंगा। आप अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, आप मुतकल्लिम हैं, मुनाजिर हैं? जी मुतकल्लिम, मुनाजिर तो नहीं है ना अभी हमारा मुनाजिर इधर तय से नहीं मैं हुआ। मुतकल्लिम हूँ जी, आप बोलिए, अब फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। इसमें ये चूंकि लिखा है मौलाना फखरुद्दीन साहब ने अखीर में मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरे के लिए ना आ सके तो मैं खुद मुनाजरे के लिए तैयार रहूंगा। तो ये क्या उज्र है इनके साथ? जी, उज्र की इसमें कोई सराहत नहीं। उज्र नहीं है जी नहीं। तो मालूम हुआ कि बिला उज्र भी बदला जाएगा। बदलने का कोई सवाल नहीं, तब्दीली जब होती जब पहले ये मुअय्यन होते। ये मुतय्यन है इसलिए कि शराइत इन्होंने तय किए हैं, आने वाले से कोई शराइत तय नहीं हुई है। करने वाले हैं, शराइत तय करने में ये मुतय्यन है। शराइत तय करने की अहलियत इनमें है, मुनाजरा करने की नहीं है। ये इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। शराइत करने वो की क्यों हट रहे हैं मैदान मुनाजरे से? की लियाकत, ये उसकी कोई वजह होनी चाहिए। वो क्यों हट रहे हैं? मुनाजरा तय करने वो आए, हट नहीं वो मौजूद मौजूद है। हैं। देखिए, शराइत इन्होंने तय की, शराइत उन्होंने भी तय की, शराइत तय करने में दोनों बराबर। उसके बाद आपने ये शर्त लगाई कि वीडियो कैमरा लगेगा, अगर वीडियो कैमरा नहीं होगा तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने यह कहा, आपने ये भी अभी बताया था कि उलमाए बरेली आएंगे, वीडियो कैमरा लगेगा या नहीं आएंगे मुनाजरे के लिए। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने यह कहा कि चूंकि हमारे यहाँ ये जायज़ नहीं है, अगर हमारे उलमाए बरेली इस शर्त की वजह से नहीं भी आएंगे तो मैं खुद मुनाजरा करूंगा। अब चूंकि उलमाए बरेली आ चुके मैदान मुनाजरा में, इसलिए मौलाना फखरुद्दीन साहब मुनाजरा नहीं करेंगे। ठीक, तो अपने मुनाजिर का आप मुतय्यन तो कीजिएगा ना कि हम कौन सा मुनाजिर मुअय्यन करेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है। मुतय्यन कर दीजिए, तूल न कीजिए, जो करने का काम है वो कीजिए। इसमें ये ऐसा भी कहीं शराइत में नहीं लिखा है कि बरेली उलमा अगर आ जाएंगे तो नजर मोहम्मद ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं ही वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, उसमें तो इसमें जो है सिर्फ सीडी फिल्म के ताल्लुक जाकिर साहब देखिए, तो अपन इसमें नहीं ले। आपकी क्या बात हुई है वहां पर, हम नहीं थे। नहीं, हम नहीं थे, लेकिन सुन ली, हम क्यों पूछे, हमारे पास ये तहरीर आप ही की दी हुई है, इसलिए हम इस तहरीर के पाबंद हैं, वो भी इस तहरीर के पाबंद रहेंगे। हमने ये मुनाजिर जो शराइत तय की है, इसके अंदर ये बात हमने कहीं नहीं लिखी है कि हमारी तरफ से ये मुनाजिर मुतय्यन हो चुका। इस हाल में भी और इस हाल में वो ये तहरीर बता रही है। नहीं, वो आप उसका कुछ भी मतलब नहीं, हम मतलब नहीं, सराहत इसमें है, इसमें सराहत है। हमारे बताने से, हमारा मफहूम मुअय्यन करने से भाई कुछ नहीं वो होगा। तो मफहूम मुखालिफ अब है तय हो गया। जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। मफहूम मुखालिफ है वो जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। उसमें ये कहाँ लिखा है कि सीडी बनेगी तो दूसरे मुनाजिर नहीं होंगे और सीडी बनेगी तो हम मुनाजिर होंगे? दोनों चीज नहीं लिखी हुई है। उसका ताल्लुक सीडी से है, उसका मफहूम मुखालिफ वो निकलता है जिसको आप दलील बना रहे हैं। क्या आप आलिम हैं माशाअल्लाह, क्या अल्फाज हैं इनके? मुखालिफ मफहूम से इस्तिदलाल फरमा मैं रहे हैं। आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन तो बात इन्होंने को क्या तूल लिखा? न देकर मैं ये अर्ज करता हूं कि आप बात मुख्तसर कीजिए, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, मौजू पर कुरान अंदाजी पहले सदर होगी, मुअय्यन हो, मुनाजिर हमारी तरफ से मुतय्यन भी हो एक सदर मुअय्यन, जाए, उसके बाद मुनाजिर तिलावत मुअय्यन हो जाए, होगी, और आपकी तरफ से भी एक मुनाजिर सदर मुतय्यन हो जाए। एक मुनाजिर मुअय्यन हो जाए, एक सदर इधर से वो होगा, एक इसको सदर मानने को तैयार नहीं कि इधर से भी मुनाजिर मुतय्यन होगा। वो इनका तो हो कहना चुके है हैं कि पहले इधर ही, से शराइत यही में रहेंगे। मुअय्यन हो। तो ये तो आप लोग समझें जिन लोगों ने तय किया है। क्या हमने कभी कहा ही नहीं कि सिर्फ नजर मोहम्मद साहब रहेंगे, हम तो उनका दावा चाह रहे थे। उन्होंने जो दावा किया था कि मैं ही रहूंगा, वो दावा अभी तक साबित नहीं किया उन्होंने।
देखिए गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। आपने साबित कर दिया तो ताहिर साहब के बात को मुख्तसर कीजिए ना, या तो जो तहरीर तय की गई है दोनों फरीक के दरमियान, उसको इन्हीं फरीकैन को जो तय मुनाजरा कराने वाले हैं उनके फहम पर छोड़ दिया जाए कि आप लोगों ने क्या समझ कर लिखा है। अगर आपके फहम को ये मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं, ये दूसरे को नामजद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ बात बढ़ाने से बेहतर है कि वो ऐलान कर दें कि मेरे फलाने मौलाना मुनाजिर रहेंगे, बात बढ़ा दीजिए। तो अब उनसे आप बात कीजिए ना। जी, अब ऐसा है, आज का मुनाजरा जो है शुरू कराइए। एक सदर मुनाजरा इधर से मुअय्यन होगा, एक मुनाजिर इधर से मुअय्यन होगा, एक सदर मुनाजरा और मुनाजिर इधर से। सदर का ऐलान वो कर दें, मुनाजिर तो मुअय्यन है ही वो मौलाना नज़र मोहम्मद साहब। इसमें एक चीज पहले तय हो जाए जी, कि अलग अलग दिन में अलग अलग मुनाजरा करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी शराइत में हमने कहीं नहीं लिया इसको कि एक ही मुतय्यन। देखिए हम लोग मान गए, आप कह रहे हैं हम मान गए इसको, चलिए उज़्र माक़ूल नहीं भी बताए तो चलेगा। चलेगा। ये कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उसके ऊपर हाँ, इसकी वजह से वक्त बर्बाद किया जाए। चलिए मान क्यों नहीं बताएंगे उतरे माकूल। अब ऐलान करें, मुनाजिर का ऐलान एक करें, उधर सदर एक इधर सदर। उधर से मुनाजिर का। देखिए जाकिर साहब, ये देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो दूसरी बात जो हो रही है कि बग़ैर उज़्र माकूल के मुनाजिर की तब्दीली, ये बग़ैर उज़्र माकूल बताए हुए मुनाजिर की तब्दीली खिलाफ शराइत मुनाजरा है, जाने दीजिए। ये तो मानना पड़ेगा। मैं एक बात अर्ज करना चाहता जी, हूं कि ये उज्र बताएगा तो चेंज कर लेगा, ठीक है, अगर उज्र आ जाएगा। अब जैसे कि सपोज करिए कि अपन ने आज के लिए मुनाजिर तय कर लिया, मिसाल के तौर पे उधर से कोई एक उलमा, तो आज ये मुनाजरा आज यही करेंगे जब तक कि ये नहीं हट सकते, जब तक कि ये अपना उज्र बता न दें, है ना। हाँ। अब आपका ये मतलब आ रहा है कि तीनों दिन के लिए एक ही हाँ, मुनाजिर इसमें यही है कि कोई मुनाजिर तब्दील नहीं होगा। भाई, अब उसमें क्यों कील-काल कर रहे हैं? समेट लें। बस बात को उसमें ये, समेटिए। बात को समेट लीजिए। आप खिलाफ वर्जी क्यों कह रहे हैं? उसको कहिए कि वो मनसूख की गई वो शर्त। मनसूख करने का हक नहीं है फरीकैन को साहब। जी, किसको है कि वो कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ही मनसूख करेगा? ये साहब फरीकैन ने शराइत तय की हैं, फरीकैन भी मनसूख नहीं कर सकते हैं, तो कौन मनसूख करेगा उसे? इसमें कहाँ है कि फरीकैन मनसूख कर सकते हैं? उसमें ये बल्कि- कहाँ है कि फरीकैन नहीं कर हाँ, सकते हैं? ये है इसमें, ये इसमें है। वो लिखा हुआ है। लेकिन ये बात लिखी है ना। ये बात नहीं लिखी है उसके अंदर में कि ये ही मुनाजरा करेंगे। चलिए भाई, उस बात को समेटिए। बहरहाल हम जाकिर साहब, हम आपकी बात इतनी मानते हैं कि मुनाजिर तब्दील किया जा सकता है, अलग दिन के अलग अलग मुनाजिर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी हम बात तो पूरी करें। देखिए ये हम लोग मुनाजरा गाह में आए हैं, आप लोगों की निजी पंचायत में नहीं आए हैं, और हक बात तो कहना चाहिए और मानना चाहिए। जब ये इसमें लिखा जा